کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. آپ کی ہومیوپیتھی کیسی چل رہی ہے؟ شروع ہو گئی کہ نہیں ابھی؟ ہوئی ہے کبھی کبھی حضور. یہ اصل میں پرابلم یہ بھی ہے کہ کچھ کیمسٹ لوکل جو ہیں جی ہاں ہاں. وہ رکھتے نہیں ہیں ہومیوپیتھی دوائیاں. اچھا. تو کچھ دن لگ جاتے ہیں, 1-2 دن کو لیتے نیلسن کو لکھیں تو فوراً مل جاتی ہے جی. وہ یہ ارینج کر دیتے ہیں جی, لیکن وہ ان کا ایک ایجنٹ بھی ہے یہاں ومبلڈن میں کہیں جی نیلسن کا. وہ نیلسن کا نہیں جی, میں دوسری جو ہے نا اینزورس, وہ بھی میں جانتا ہوں. وہ حضور ان کا نیلسن کی اچھی دوائیں ہیں, قابل اعتماد ہیں. حضور ومبلڈن میں ان کا ویئر ہاؤس ہے جی. ویئر ہاؤس ہے جی کس کا؟ یہ اینزورتھ کا. اچھا, وہاں کیا ملتا ہے؟ وہ بلک دیتے ہیں جی. میں ویسے نہیں, میک کون سا ہے دواؤں کا؟ ان کا اپنا ہومیوپیتھی اپنے اینزورتھ کے نام پہ. جی کافی بڑی. اچھا, بڑی ہوگی. پھر مجھے بناتے ہیں جی. جا کے کسی وقت تحقیق کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کے جو پوٹنٹائزر ہے جی جی وہ کہاں کی بنی ہوئی مشین ہے. پوچھ لیں گے. ہاں, وہ دکھا بھی دیتے ہیں اپنا اس کا فارماسیوٹیکل انڈسٹری اپنی جہاں پر لگی ہوئی ہے. اگر ضرور کوئی میرے خیال میں وہ بات کچھ باہر ہے, کیا دور ہے یہاں سے, کتنی دور؟ کہیں سرے میں کتنی دور؟ 500 میل. ہاں, نہیں, وہاں پہ وہ پوٹنٹائز جہاں کرتے ہیں. میرے خیال میں کہیں باہر ہے. وہ تو کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ڈیلیگیشن جائے دیکھے, کیونکہ ہمیں بہت سی دواؤں کے متعلق ایسے تجربے کرنے ہیں جو میسر ہی نہیں ہیں, مارکیٹ میں ملتی نہیں وہ دوائیں. تو اس کے جب تک اپنا پوٹنٹائزر نہ ہو اور پھر فوری طور پر بنایا نہ جا سکے, اس وقت تک بڑی مشکل پڑتی ہے. باقی جیسے تھی حضور ان سے کہ وہ دکھا دیں. I think they would be happy ہاں ہاں, آئی تھنک وہ it depends on who approaches them. آپ ٹھیک, میں انشاءاللہ میڈیکل پریکٹیشنر کے طور پہ, کروں گا جی انشاءاللہ. ہاں, آپ کا ایک اپنا یہاں کا اسٹیٹس ہے, ان کو کہیں کہ ہم معائنہ کرنا چاہتے ہیں بعض ڈاکٹرز, They will be happy to, آف کورس. ہاں, انشاءاللہ. اور وہاں سے ان کے پوٹنٹائزر کا پتہ کریں کہاں سے لیتے ہیں وہ. ٹھیک ہے جی. جس میں ضرور یہاں پہ سیمینار وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے اسٹال لگاتے ہیں وہاں پر, ساری اپنی دوائیاں اپنے پروڈکٹس دکھاتے ہیں. ہمیں تو آج تک نہیں پتہ لگا پوٹنٹائزر کون بناتا ہے اور کہاں سے بنتا ہے. آٹومیٹک جو ہے پاکستان میں ہمارے لاہور میں والے ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے خام خواہ پیسہ کافی اس پہ ضائع بھی کیا, لیکن جو مشین بنائی وہ تو خوفناک چیز تھی. دودھ چاہیے ہو آپ کو 1 پاؤ 1.5 پاؤ, اس کے لیے بھینس تو نہیں پال سکتے آپ. تو وہ بھینس پالنے والی بات تھی, اس میں وقت بھی اتنا زیادہ, دیکھا تھا آپ نے ابھی تک پڑا ہوا. یہ میں کہاں رکھوں. وہ زیادہ وقت تو اس کو چارہ ڈالنے میں لگ جاتا تھا. پھر شروع کریں, آج کیا ہے؟ کیلکیریا سیلف حضور ڈسکس کریں. کیلکیریا سب چل رہی ہے. جی چل رہی ہے یا چلنی ہے؟ کڈنی کی پالیسی. کڈنی پہ پہنچ گئے ہیں. کرونک کڈنی انفلمیشن حضور نے فرمایا تھا آخر میں. مگر کس جگہ ہے؟ ہاں ہاں, دائمی نزلہ میں سمجھ گیا ہوں جی. Most infected catarrh, the nose has been cured, or the nose has been cured by this remedy. بہت سخت قسم کا ضدی نزلہ بھی اس سے ٹھیک ہوا ہے, لیکن ضدی نزلے تو بہت سی دواؤں میں پائے جاتے ہیں, اس لیے معین طور پہ نہیں کہا جا سکتا. گریفائٹس کا بھی بڑا ضدی نزلہ ہوتا ہے, کلکیریا کارپ کا بھی ضدی نزلہ, اس میں کاربونیم سلف میں بھی کرونک نزلے بہت سی دواؤں میں ہیں. اس لیے دراصل کرونک نزلے کی پہچان کرونک نزلہ نہیں بلکہ دوسری علامتیں ہیں. اور جن کو پرانے نزلے ہوں ان کی ساری زندگی جیرن ہو جاتی ہے, ان کو کچھ بھی نہیں رہتا بیچاروں کا, گھریلو زندگی بھی برباد, دوسروں کا بھی برا حال. پرانا نزلہ ہو جائے تو پھر بدبو شروع ہو جاتی ہے اور ایسے مریض کے پاس بھی نہیں بیٹھا جاتا. تو اس لیے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. مختلف دواؤں جن میں نمایاں طور پہ نزلہ پایا جاتا ہے ان کی علامتیں اگر وہ الگ الگ کی جا سکتے ہوں تو اس پر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے.
इसमें मसलन सुराइनम में भी क्रॉनिक नज़ला पाया जाता है बहुत, लेकिन उसकी बदबू एक नुमाया चीज़ है जिससे वो पहचाना जाता है। सांस की नाक की तकलीफ होती है सुराइनम को, तो उसकी जो ख़ास अजीब बात है वो ये है कि सारा जिस्म ठंडा और सख्त गर्मी पसंद, लेकिन नाक की तकलीफ में वो ठंडी हवा पसंद करता है। हालांकि ठंडी हवा का दुश्मन होता है वो मरीज़। तो बाज़ अजीब व गरीब अलामतें जो मिलती हैं ना, उनसे आपको दवाओं की पहचान आसान हो जाती है। लेकिन अभी देखते हैं, इसमें चोकिंग कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा है और इस दवा का ख़ास हिस्सा है। जैसे हेपेसल्फ में भी चोकिंग बहुत पाई जाती है। ये चोकिंग कहाँ की है बताइए? हाँ, गली गले में किस नाली? दो नालियाँ हैं, खाने की नाली है, हवा की नाली है, किसकी है? हवा की नाली में होनी चाहिए। अगर हवा की नाली में ज़्यादा चोकिंग तकलीफ दे सकती है। नहीं, दूसरी भी नालियों में होती है। बालों को सॉलिड फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकते और चोक कर जाता है। बालों को लिक्विड से एलर्जी है या खौफ होता है, वो नहीं कर सकते। जैसे कि हाइड्रोफोबिनम में जो कुत्ते के कांटे का मरीज है, वो पानी और किसी किस्म का लिक्विड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए हाइड्रोफोबिनम उन मरीजों को देते हैं जो लिक्विड बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो चोकिंग इसोफेगस की भी होती है और ट्रैकिया की भी होती है, और ये जो फेरिंग्स कहलाते हैं वो फेरिंग्स, हाँ, जी। फेरिंग्स की भी होती है। इसलिए इसमें फेरिंग्स की ज़्यादा है चोकिंग। जिस चोकिंग कहा गया ना, तो मुराद है फेरिंग्स की चोकिंग, क्योंकि खांसी के नज़ले के बाद मुस्तकिल खराश रह जाती है बाकी, और वो फिर रफ्ता रफ्ता इतनी हसास हो जाती है कि मामूली सी हवा से या बोलने की कोशिश से चोकिंग हो जाती है। इसलिए इस चोकिंग को ख़ास तौर पर पेश नज़र रखना चाहिए। हैपर में भी बहुत है और किलकेरिया सेल्फ में भी। तो इसमें चूंकि नाक के साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इसलिए लेरिंक्स उसके साथ कनेक्शन है। कनेक्शन होते हैं, तो जिसका उससे- क्रॉनिक नज़ला होगा उसके ज़्यादा इम्कान आते हैं। किडनी का मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी में जो बहुत ही मुश्किल मर्ज है, इसमें कैलकेरिया सेल्फ बहुत अच्छा काम करता है अगर बाकी तशखीस दुरुस्त हो। यानी बाज़ दफ़ा तुक लगानी पड़ती है, इसमें कोई हरज नहीं है, मजबूरी होती है। बाज़ मरीजों की अलामतों में आपस में कोई फ़र्क होता ही नहीं ख़ास, सिर्फ किडनी की तकलीफ है, बाकी अलामतों में कोई नुमाया बात किसी और मरज़ की नहीं पाई, किसी और दवा की नहीं पाई जाती। तो आप उस वक्त मिजाज की दवा ढूंढते रहेंगे, तो इतने में वो क्या कहते हैं, तातरियाक़ ज़िराक़ उर्द शवद मारगजीदा मुर्द शवद, कि जब तक इराक से तरियाक आएगा उस तक जिसको सांप ने काटा वो मर चुका होगा। तो इसलिए बसा औक़ात एक होम्योपैथ के पास वक्त ही नहीं होता, उस वक्त उसको अपनी उस जहानत से काम लेना पड़ता है जो तजर्बे से पैदा होती है। सिर्फ जहानत का काम नहीं, मरीजों के लंबे तजर्बे से, उनके अंदाज से वो ये महसूस कर लेता है कि ये इन 2-3 दवाओं के अंदर होगा या उन 2-3 दवाओं का मरीज है। तो उसके मुताबिक फिर वो दवाएं याद रखनी चाहिए जो मुस्तकिल गहरी ख़तरनाक बीमारियों से ताल्लुक़ रखती हैं। उनमें एक गुर्दे की है, गुर्दा नाकाम हो जाए तो सब कुछ बिगड़ जाता है। जिस तरह जिगर है, जिगर तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुर्दे को भी बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। मर्दाना तकलीफ़ों में भी इस दवा को एक बड़ा दखल है। बालों को गले में होशनेस पैदा हो जाती है नज़ला ज़ुकाम वगैरह से, बालों की शाम को बढ़ती है, बालों की सुबह को बढ़ती है। ये अलामतें हैं जिनसे पहचाना जाता है।
शाम को बढ़ने वाली कौन कौन सी हैं, कोई याद है किसी को? ठीक है, कार्बोवेज है एक उनमें से, और फास्फोरस, और सुबह कौन सी ज्यादा होती है? ठीक है, इसमें मुस्तकिल होर्सनेस है, यानी बालों की आवाज ही बैठ जाती है, खिस 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 करके आवाज निकलती है। और लंबी तकलीफों के नतीजे में जब ये कैफियत एक दायमी कैफियत बन जाए, उस वक्त इस दवा को भी ज़ेर नज़र रखना चाहिए। और इसमें कैल्शियम भी है और सल्फर भी है, लेकिन इलामतों में रात को जो इलामतें हैं उनमें सल्फर गालिब आती है, इस पहलू से कि कपड़े नहीं बर्दाश्त रात के वक्त और बार बार उतार के फेंकता है। लेकिन पल्स्टिल्ला और सल्फर और कार्बोनियम सल्फ में कैलकेरिया सल्फ में इस आदत में फ़र्क क्या है, ये देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि कौन सा किस चीज़ का मरीज़ है। पल्स्टिल्ला में तो या पाँव जलेंगे या हाथ जलेंगे, सारा जिस्म इकट्ठा गर्म नहीं महसूस होता उस वक्त, या सर की तरफ ही जोश होगा जैसा कि बेलाडोना में होता है। और सल्फर में भी हाथ, पाँव और सर की चोटी, ये कम्बिनेशन बड़ा नुमाया है। इसमें किसी एक जगह गर्मी नहीं बैठती, ना हाथ पर, ना पाँव पे, ना सर की चोटी पे, सारा जिस्म को कपड़े से घबराहट होती है। गर्म कपड़ा ओढ़ने से, हाँ मौसम ठंडा भी हो तब भी बिस्तर की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। दमे की भी बहुत चोटी की दवा है, लेकिन ऐसी दवा नहीं है जो रोज़मर्रा काम आए। बाज़ दमे की दवाएं हैं जो रोज़मर्रा काम आती हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक़ दमे की ऐसी इलामतों से है कि खा वो गहरी तौर पर मरीज़ के मुशाबे हों या ना हों, वो उन इलामतों को समेट लेती हैं, एक तरफ कर देती हैं। उन दवाओं में जो रोज़मर्रा काम आने वाली हैं, कार्बोवेज भी है, हाँ बताता हूँ, आर्सेनिक भी है। शिकायतें आ रही हैं बाज़ दफ़ा के बाज़ लोग लिख रहे हैं कि आप जब दवाएं बताते हैं तो कुछ आहिस्ता बताया करें, क्योंकि जो नावाकिफ़ हैं उनके लिए अपने स्पेलिंग में लिखना भी मुश्किल हो जाता है, और स्पेलिंग भी मैं बताता नहीं क्योंकि इसलिए बाज़ों के लिए बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। आज ही एक ख़त मिला है, मैं जो डाक सुबह देख रहा था, उसमें उन्होंने लिखा होता कि यह नुस्खा मैं लेके गया हूँ जो आपने बताया था, तो ऐसी तो कोई दवाई यहाँ जर्मनी में मिलती, आप जर्मन स्पेलिंग में भेजें। उसने लिखा हुआ था मसलन सोराइनम को एस से और RY, और वो जो है दुकानदार यहाँ के, वो ज़रा सा भी लफ्ज़ बदले तो बिल्कुल परवाह नहीं करते, खुद नहीं सोचते कि क्या होगा, रिस्क नहीं लेना चाहते। इस तरह फाइटोलाका को F से लिखा हुआ, अब मुझे पूरे लफ्ज़ तो याद नहीं, मगर वो अजीब गरीब सा नुस्खा था, तो उस बेचारे ने टेलीविजन से देखा था, जो उन्होंने बातें की हैं उससे पढ़ा है। तो इसलिए मैं आहिस्ता बोल रहा था कि कुछ लोगों को पता लग जाए ये क्या चीज़ है, मगर असल इलाज ये है कि ये नुस्खा अगर मुमकिन हो यहाँ जर्मन ज़ुबान में जो दवाओं का उनका नॉमेनक्लेचर है उसके मुताबिक, और अंग्रेज़ी में और उर्दू में भी अगर लिख के टेलीविज़न पे साथ आ जाए करे, तो यही असल इलाज ये है। और ऐसा बार बार सामने आए तो लोगों की नज़र में बात ठहर जाएगी, फिर उनको समझ आ जाएगी कि क्या लिखना है। लेकिन अदरवाइज इसके बगैर वहाँ के दुकानदार कुछ नहीं देते।
तो वो बता रहा था कि दमे में रोज़मर्रा काम आने वाली दवाओं में आर्सेनिक भी है, इपिकॉक भी है, कार्बोवेज भी है और बेलाडोना भी है, नक्सवोमिका भी है, NUX नक्स फुल स्टॉप, वोमिका VOM, अगर फुल स्टॉप डाल दें तो ये मुखफ़फ़ की अलामत है। तो पूरा लंबा नाम ही लिखना है तो छोटा लिखकर आगे फुल स्टॉप डाल दें तो जो केमिस्ट है वो फौरन समझ जाएगा। नक्स वोमिका VOM। अब रस्टॉक्स है RHUS और फिर TOX फुल स्टॉप, क्योंकि असल इसका नाम है रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन। तो इतना लंबा नाम कौन याद रखे। इस तरह बहुत से नाम ऐसे हैं। मर्क्यूरियस सोलुबलिस, ये लंबा नाम कौन याद रखेगा। तो मर्कसॉल कहते हैं इसको, इसलिए MERC और SOL। तो ये जो तरीक़ेकार है दवाएं लिखने का और उनके नाम पढ़ने का, मेरा ख्याल है इस पर भी अगर कोई क्लास हो जाए पूरी और मुख्तलिफ बड़ी बड़ी दवाएं जो हम पढ़ा चुके हैं उनको बाकायदा कंप्यूटर से पहले, यहाँ ज़रूरत नहीं बोर्ड की, लेकिन कंप्यूटर में वो वही दाखिल कर सकता है, इनको वो दाखिल कर ले और फिर हम हर दवा के मुताबिक तफसील से बताएंगे ये नाम में इस तरह पढ़ा जाता है। और सबसे अच्छा तरीक़ा ये है दूसरे मुल्कों में कि बजाय इसके कि लिख कर नुस्खा दें, अब ज़ुबानी बोलें उसका नाम, वो फिर समझ जाएगा। लेकिन अगर लिख के आपने गलत स्पेलिंग कर दें तो फिर वो नहीं समझते। तो जर्मन जमात को ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। वहाँ हमारे कुछ ऐसे भी हैं जिनको ना अंग्रेज़ी ना जर्मनी कोई ज़ुबान भी नहीं आती। जर्मनी को जर्मन कहते हैं और जर्मन को जर्मनी कह देते हैं। तो ये भी नहीं पता कि जर्मन ज़ुबान है और जर्मनी मुल्क है। तो उनके लिए, बेचारों के लिए, जो बाज़ बड़ी उम्र की औरतें आई हैं, मेरी मुराद वो है, उनको अब उनके लिए बहुत देर हो चुकी है, वो लेट हो गया उनके लिए ज़ुबानें सीखना, मगर ज़रूरत उनको पड़ती है, बीमारियां उनको होती हैं। तो इसलिए असूल यही है, कुछ तो हम कोशिश करेंगे कि सब दवाएं तफसील से समझा दी जाएं। दूसरा ये कि वो बोल के बताया करें ये दवाई चाहिए, कागज़ अपने हाथ में रखें और बोल के बताएं और अपनी ज़ुबान में तलफ़्फ़ुज़ लिख लें। बस सबसे अहम बात यह है। जब मैं आर्सेनिक कहता हूँ तो हर शख्स अपनी ज़ुबान में लिख सकता है जो भी उसकी ज़ुबान है, तलफ़्फ़ुज़ यही हो, जब वो पढ़े तो ठीक पढ़े। तो कौन कौन सी दवाएं हैं? आर्सेनिक, बेलाडोना, नक्सवोमिका और इपिकॉक और नक्सवोमिका हो गई और कार्बोवेज। आर्सेनिक क्या हो गई? आर्सेनिक ये 5 फरमाइए। हाँ, ये दवाएं हैं जो अमूमन काम आने वाली हैं। अगर गर्मी से ज़्यादा बढ़े तो फिर बेलाडोना काम नहीं आएगी, बल्कि मैग्नीशिया फॉस काम आएगी, क्योंकि मैगफॉस का तशन्नुज गर्मी से आराम पाता है और सर्दी से बढ़ता है। बेलाडोना का तशन्नुज गर्मी से बढ़ता है और सर्दी से आराम पाता है। इसलिए बेलाडोना खुश्क खांसी में जो अमूमन काम आती है, उसकी यही वजह है कि बोलने के वक्त कुछ बोलने के बाद इस हिस्से में गर्मी पैदा हो जाती है खून के दौरान से, और हंसने से भी हो जाती है। तो उस वक्त बेलाडोना अगर खाया जाए तो वो उसको कंट्रोल में रखता है। एक दफ़ा मुझे काफ़ी बहुत बोलना पड़ा था, जुमे पे जा रहा था, तो यही तकलीफ, मुझे ख़तरा पैदा हुआ कि जुमा सही पढ़ाया भी जाएगा कि नहीं। तो जाते जाते मैंने बेलाडोना 200 की खुराक खाई और सारा जुमा आराम से निकल गया। वो जो दबाव पड़ता था ना खून का, वो फ़ौरन रुक गया। तो बहुत मुफीद दवाएं हैं और बहुत ज़ूद असर हैं अगर हिकमत से इस्तेमाल की जाएं।
टांगों की का बोझल होना ये किन किन दवाओं में पाया जाता है, कुछ याद है आपको? मेरी किसी और को जी? कार्बोवेज में और कैलकेरिया कार्ब में बहुत नुमाया है, और आर्निका में भी टांगों की थकावट और दुखन जो है उसके साथ अगर बोझलपन हो तो उसमें आर्निका बहुत मुफीद है। लेकिन कैलकेरिया सल्फ में भी ये एक नुमाया अलामत है। कैलकेरिया सल्फ का मरीज अमूमन बोझल टांगों वाला होता है, उसको मुश्किल पड़ती है। लेकिन इसकी एक और अलामत मैंने बताई थी जो टांगों से ताल्लुक रखती है, वो क्या थी? चलने के बाद हैं? चलने से आराम, लेकिन थोड़ा नहीं, इसमें खड़ा होना मुश्किल, क्योंकि सल्फर की इलामत में है खड़ा होना मुश्किल। और दूसरे ब्राउनिया के में है कि वो चले तो तकलीफ होती है, लेकिन ठहरने से आराम आता है। इसमें चलने से शुरू में तकलीफ नहीं होती, लेकिन कुछ देर चलने के बाद, ब्राउनिया में कुछ देर चलने के बाद बावजूद इसके कि चलने से तकलीफ होती है, कुछ रिलीफ मिल जाता है। लेकिन इसमें चलने के बाद सारा बदन दुखन से भर जाता है और फिर वो काफ़ी देर तक इसी तरह रहती है। तो इस ऐसे मरीज के लिए खड़ा होना भी मुश्किल और चलना भी मुश्किल, और चलने के साथ साथ दर्द बढ़ती और जमा होने लगती है। ये अजीब बात है कि होम्योपैथिक दवाओं में जो औकात मिलते हैं, मैं आपको पहले भी बताया था कि बाज़ दवाएं औकात ही से पहचानी जाती हैं। अब मलेरिया में औकात को बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि मलेरिया की अलामतें तकरीबन एक जैसी होती हैं। सब में सर्दी, सब में कांप के बुखार चढ़ेगा, बुखार उतरेगा तो अक्सर पसीना आता है। तो किस दवा को मैं अब इन अलामतों से कौन सी दवा ढूंढेंगे? इसलिए ज़्यादातर इन्हिसार मलेरिया में औकात पर किया जाता है या जनरलाइजेशन है। जो जनरलाइजेशन है उसमें आर्निका प्रिवेंटिव के तौर पर भी, और बुखार हो चुका हो तो उसके दौरान जब उतरा हो उस वक्त भी देने से बहुत फ़ायदेमंद है। आर्निका 1000 में मैंने इस्तेमाल करवाया है और अल्लाह के फजल से उसके बहुत ही अच्छे नताइज निकलते हैं। मैंने इनको भी लिखवाया था मुबल्लिगीन को अफ्रीका के, कि आर्निका मुस्तकिल अपने इस्तेमाल में रखें। और आर्सेनिक 1000 में बुखार, दूसरा बुखार चढ़ने से पहले दे दिया जाए तो बहुत मुफीद है। आर्सेनिक को छोटी पोटेंसी में मैंने इतना फ़ायदेमंद नहीं देखा। मैं बहुत पहले 30 में भी बहुत इस्तेमाल किया करता था, वो ख़ास फ़ायदा नहीं देता था। लेकिन 1000 में बहुत जल्दी असर दिखाता है। और बच्चों के बुखारों में जिनको सर्दी लग गई हो, आर्सेनिक 1000 खुराक के फल से, एक ही खुराक से वो बुखार वहीं बैठ जाता है, उसको यानी उसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा होती नहीं। क्यों सलीम, दोनों को इस्तेमाल किए हैं? फिर क्या नतीजा निकला? हाँ हाँ, देखिए सुलसत सलीम घबराया हुआ आया था कि मैं दूसरों को दवाइयाँ क्या दूं, मेरे घर से SOS आ गया है। होश उड़े हुए थे इसके और उस वक्त फिर याद नहीं आती दवाई, हालांकि इतने लोगों को देते। मैं आर्सेनिक देते हो लोगों को, खुद क्यों नहीं देते? 1000 दी, रात सुबह तक बुखार ख़त्म था बिल्कुल। और भी बहुत से आजकल तो अक्सर बच्चे जो यहाँ आए हैं उनको आर्सेनिक 1000 बस सिर्फ एक दफ़ा, वो अल्लाह के फजल से बुखार को आगे बढ़ने नहीं देती। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हर मौसम में
ज़रूर काम करे। इसमें और कई दवाएं आपको मिलेंगी जो बुखार उतारने के लिए फ़ौरन काम आती हैं, लेकिन जिस किस्म का वायरस किसी मौसम में चल रहा हो, वहाँ जो दवा एक दफ़ा कामयाब हो वो इल्ला माशाअल्लाह सब मरीजों पर फिर काम आती है, वो उस एपिडेमिक की दवा बन जाती है। तो आजकल मैंने देखा है कि आर्सेनिक इंग्लिस्तान के बुखारों में जो अचानक आते हैं, पहले अलामतें भी नहीं ज़ाहिर होती, इसीलिए मुझे पहले आर्सेनिक का ख्याल आया था, वरना मैं पहले दूसरी दवाएं जो गले की खराबी की इन्फेक्शन दूर करने वाली दिया करता था कि कोई अलामत नहीं बताते थे। अचानक बुखार हुआ, रात को हुआ, तो इसने मेरी तवज्जो आर्सेनिक की तरफ फेरी और अल्लाह के फजल से वो बिल्कुल तीर बहदफ काम करता है। तो मलेरिया में भी आर्सेनिक को बहुत बड़ी अहमियत है, लेकिन ऊंची ताकत छोटी से बेहतर है। और मलेरिया में कौन कौन सी दवाएं, चाइना है और बहुत सी दवाएं हैं, मगर उनके औकात से पहचाना जाता है। सुबह 9 बजे अगर बुखार चढ़े तो उसको अमूमन नेट्रोम्योर फ़ायदा देती है, और अगर रात को 11 बजे चढ़े तो फिर कौन सी होगी? हाँ? नहीं, 11 बजे की कौन सी दवा है? हैं? नहीं, रात को, शाम को सोने से पहले, घंटा पहले। क्या? ब्राउनिया? वो आपके साथ तो वही बात हुई है जो या मेरे साथ जो एक दफा पठान से हुई थी। एक वो लड़ाई हो रही थी, फसाद हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम वगैरह चल रहे थे ना उस पुराने ज़माने में। तो उसने एक हिंदू को पकड़ लिया और उसको कहा कि कलमा पढ़ो वरना मैं अभी कत्ल करता हूँ। पहले तो उसने काफ़ी मिन्नतें की कि बस करो, मुझसे रहने दो, ना पढ़वाओ। तो उसने कहा सवाल ही नहीं, मैं कलमा पढ़ो वरना जान गई। उसने कहा अच्छा फिर बाबा पढ़ा दो। मैं शुक्र करो खान को भी कलमा नहीं आता। क्या? नहीं, आर्सेनिक नहीं, वो दवाई बेरियम या बिस्मत, इस किस्म की कोई दवाई है। इत्तेफाक से मेरे जहन में फिर रही है और याद नहीं आ रही, मैं देख के बताऊंगा। ये ब्रोमियम है, सॉरी याद आ गया, ब्रोमियम की इलामत 11 बजे होती है। और ब्रोमियम की और कोई खास बात है? हाँ, इनलैंड में तकलीफ बढ़ती है, समंदर के किनारे आराम आता है। तो ये दो इसकी खास अलामतें आपके जहन में नक्श रहनी चाहिए। और ऐसा मलेरिया हो या कोई ऐसा बुखार जो वक्त का बहुत पाबंद हो, और 11 बजे उधर अलार्म बजा, उधर उसने बुखार ने अपनी हरकत शुरू कर दी, उसमें ब्रोमियम काम आएगी। और मगर एक बात याद रखें, औकात के लिहाज से मलेरिया को तकसीम करके उसका चार्ट बना लें ताकि फिर लंबे झगड़ों में ना पड़ें। लेकिन पहले बहरहाल आर्निका और आर्सेनिक को फौकियत देनी चाहिए। और दूसरी बात याद रखें कि जब अभी बुखार ना चढ़ा हो और जिस्म दुखता हो, उस वक्त रस्टाक्स और ब्रायोनिया बारी बारी देना अक्सर सूरतों में मलेरिया से बचा ही लेता है। और अगर मलेरिया क्रॉनिक हो तो उस वक्त भी दो बुखारों के दरमियान ब्रायोनिया और रस्टाक्स को आप एक रूटीन नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वक्त वाली जो पहचान है उसके झगड़े में मैं काफ़ी देर पड़ चुका हूँ और बड़ी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि मलेरिया वक्त भी बदलता रहता है अपने, कभी किसी पर चढ़ गया, कभी किसी पर चढ़ गया, और इतना पाबंद नहीं है वक्त का जितना लोग समझते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल पेश आ जाती है। वो दवाएं जो तजर्बे में आ जाएं उसी को इंसान एतमाद से दे सकता है, और उनमें ये दवाएं जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे तजर्बे में है। नेट्रोम्योर बहुत अच्छी दवा है सुबह के बुखार में, लेकिन कभी चढ़ते बुखार में नहीं देनी। बाकी मलेरिया में भी ये एहतियात लाजिम है कि मलेरिया में अगर चढ़ते बुखार में दें तो बाज़ दफ़ा एग्रेवेशन इतनी सख्त हो जाती है
कि मरीज के मरने का खतरा पैदा हो जाता है और काम भी नहीं फिर करती। अगर वेट करके झाड़ झूड़ के जिस्म को फिर छोड़ देगी, फिर बुखार हो जाएगा। लेकिन उतरते हुए बुखार में जब आखिरी दमों पर हो, उस वक्त दें दवा और फिर अगले बुखार से पहले पहले जारी रखें। इलामत इस बात की इलामत कि दवा अच्छी है, काम कर रही है, या तो ये है कि अगला बुखार आएगा ही नहीं, या ये कि वो वक्त बदलेगा और पीछे चला जाएगा। अगर उसने 9 बजे आना था तो वो 1 बजे 2 बजे आएगा और उसका हमला पहले हमले से यकीनन कम होगा, और या फिर वक्त से बहुत पहले आकर अभी एक बुखार उतरा, दरमियान में अपनी दवाई शुरू कर दी, फिर चढ़ गया, एकदम आकर हैरान कर देता है। बाज़ दफ़ा लोग घबरा जाते हैं कि ये हमने क्या दिया, लेकिन उस वक्त दवा बंद कर देनी चाहिए जब बुखार आ जाए। फिर वो टूटेगा, निस्बतन जल्दी टूटेगा, निस्बतन कम तकलीफ दे होगा। फिर दवा दें तो फिर खुदा के फल से अगला बुखार नहीं आएगा। तो मलेरिया की हैंडलिंग, यानी उसको मलेरिया को इन दवाओं से संभालना बहुत मुश्किल काम है, और मगर एक दफ़ा तजर्बा हो जाए तो बहुत सहूलत पैदा हो जाती है, कोई मुश्किल नज़र नहीं आती। पता कैसे चला कि मलेरिया बुखार है? ये बड़ा मुश्किल का सवाल है। मलेरिया का ये नहीं, आपने तो सादगी में पूछा है, मैंने कह दिया मजाक में, लेकिन मजाक की बात नहीं, वाकईतन बड़ा मुश्किल सवाल है। क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर्स बास अपने लेक्चर्स में ये कहा करते थे, और हमारे एमडी डॉक्टर जो बने हुए बास सीनियर, उन्होंने मुझे सुनाया कि हमारे ज़माने में डॉ मेडिकल कॉलेज और किंग्स एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज में एक अंग्रेज़ प्रोफेसर था जो माहिर था मलेरिया का। वो अपने लेक्चर में कहा करता था कि मलेरिया सवाए हामिला औरत के हर दूसरी चीज़ की नकल कर सकता है, इतना बदलता है अपना भेस कि कभी इस शक्ल में आएगा, कभी टाइफाइड लगेगा, कभी कुछ और लगेगा, और नज़ले जुकाम वाली इलामतें भी ज़ाहिर कर लेता है, जगह जगह बैठता है, रूमेटिज्म का बुखार भी बन जाता है मलेरिया। तो इसकी पहचान वैसे मुश्किल है, लेकिन जो दवाएं मैंने आपको बताई हैं ये इसकी पहचान बन जाती हैं। अगर आर्निका दें और आर्सेनिक दें और रस्टॉक्स और ब्रानिया और फ़ायदा हो तो पक्की बात है कि था मलेरिया, वो भाग गया, निकल गया। और अगर इनसे काबू में ना आए तो एक फ़ायदा ज़रूर हो जाता है होम्योपैथिक से कि उसकी असल शनाख्त लौट आती है, और फिर आपके लिए पहचान मुश्किल नहीं। मलेरिया की बुनियादी इलामत क्या है? सख्त सर्दी, तेज़ बुखार, मतली, उल्टी वगैरह, सर दर्द, ये सब कुछ बुखार में होता है। फिर बुखार टूटना शुरू होता है और पसीना आकर कुछ देर के लिए आराम आ जाता है, और उस वक्त लगता है मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर, यानी ऐसा बुखार जो 2 हमलों के दरमियान बदन को बिल्कुल छोड़ देता है। उसके बाद जब दूसरा हमला आए फिर वही इलामतें असर नौ शुरू, वही मतली, बुखार के आगाज में सख्त सर्दी, फिर इतनी तपश के कपड़ा भी नहीं लिया जाता, और उल्टी के साथ साथ सर दर्द बढ़ती जाती है, और इसका हर अगला हमला पहले हमले से ज़्यादा शदीद होता है और बिल्कुल जिस्म बेजान हो जाता है। फिर अगर इंसान ना मरे तो कुछ देर के बाद ये छोड़ देता है, पता नहीं अब खुद छोड़ता है या कुनीने खिला खिला कर लोग पीछा छुड़ाते हैं। मगर वो जो मॉडर्न दवाएं हैं, रेसोचीन वगैरह और नेवर्क्विन वगैरह, ये सारी बद असर रखती हैं। ये तो मेरे तजुर्बे में है। इनसे बाज़ दफ़ा तो सख्त किस्म की एलर्जी पैदा होती है जिल्द में, बाज़ दफ़ा गुर्दों पर बुरा असर पड़ जाता है। मुख्तलिफ दवाओं में आजकल लिटरेचर में लिखने भी लग गए हैं वो कि इसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा, इसका ये होगा। तो वो तरीक़े इलाज इस लिहाज से तो अहम है कि मरते हुए मरीज़ के लिए वो लाजिम हो जाता है। जब तक होम्योपैथ को ऐसी दवा न मिले जिससे वो बीमारी को देख कर संभाल सके, उस वक्त तो उसका ये हक नहीं है कि वो
एलोपैथी के खिलाफ लेक्चर दे के कहे कि बिल्कुल ना जाना, इसके बुरे नुकसान होंगे, वो मौत से बुरा और क्या नुकसान होगा। तो अगर होम्योपैथी के हाथों में मरना ही है बेचारे ने, तो बेहतर है कि एलोपैथी के हाथों से कुछ खुजली कर करके रह जाए बाकी। इसलिए ये जो तस्सुबात है ना, ये मौलवीपन, ये हर जगह जालिमाना हरकत है। वाक़यात को लेना चाहिए। किसी से अगर कोई चीज़ काबू नहीं आती तो ना कह दे मरीज को कि तुम्हें बस के नहीं रहे, खुदा के लिए कहीं और जाओ। तो एलोपैथिक में ये फ़ायदा ज़रूर है कि मलेरिया की ऐसी दवाएं निकल चुकी हैं कि इल्ला माशाल्लाह मरीज़ हाथ से निकलता नहीं, टीके देकर और कुछ करके वो संभाल लेते हैं एक दफ़ा। फिर वो विटामिन भी उनको पता कौन कौन सी साथ देनी है। तो होम्योपैथिक में अक्सर लोगों को विटामिन की मदद का तजर्बा नहीं है या ख्याल भी नहीं जाता, और बाज़ दवाओं में उसकी ज़रूरत पड़ती है बड़ी सख्त। तो अब होम्योपैथिक जो बुखार की बातें थी, मलेरिया की काफ़ी हो गई। अब आगे बात चलाऊं? क्यों जी मुबशर साहब बताएं, आपको देख रहा हूं मैं। हो गया काफ़ी? अच्छा मैंने देखा। मेरे की आप बता रहे थे कि मुख्तलिफ चीज़ों का। हाँ, मुझे अभी ख्याल है कि आपने एंटीडोट के बारे में भी कुछ हमें बताया नहीं, कि जो कोई आप किसी को होम्योपैथिक दवाई दें तो उसके साथ कोई गलत नतीजे ज़ाहिर हो रहे हों। सब जितने एंटीडोट्स हैं ये लिखे होते हैं किताबों में। हर दवा के बाद उसका एंटीडोट भी आखिर पे ज़रूर लिखा होता है। मटीरियल मेडिकल में सब मिल जाएगा। मगर बिलुमूम बाज़ एंटीडोट ऐसे हैं जो हर जगह काम आ जाते हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा अमूमी असर रखने वाले एंटीडोट्स हैं, एक नक्सवामी का है और एक है कैम्फर। कैम्फर के मुतालिक तो बाज़ डॉक्टर इतने सेंसिटिव हैं, कहते हैं इसको अपने बाकी डब्बे में रखना भी नहीं चाहिए, जो दवाओं का डब्बा है उससे भी अलग रखना चाहिए। हालांकि 6X में या लो पोटेंसी और या इससे भी कुछ ऊपर हो, उसमें कुछ भी नहीं रहता। मगर वो कहते हैं कि इसकी जो हल्की हल्की भाप उड़ती है वो भी दूसरी दवाओं पर असरअंदाज हो जाती है। मगर ये तो मैं समझता हूँ ज़्यादती है, क्योंकि मेरे दवाई के डब्बे में हमेशा कैम्फर रहा है और किसी दवाई ने काम करना छोड़ा नहीं। इसलिए ये तवहमात हैं। लेकिन ये दुरुस्त है कि बसा औकात एक मरीज़ का इलाज शुरू किया और उस दवा ने असर किया और फिर छोड़ दिया, और कुछ समझ नहीं आती थी और दवाएं दी फिर भी असर नहीं हुआ, तो पता चला कि उसका उस फितने की जड़ विक्स है। क्योंकि एक ज़माना था जब विक्स बहुत पॉपुलर होती थी। वैजलीन में उन्होंने कैम्फर मिलाया हुआ है और एक दो और चीज़ें भी मिलाई होंगी, लेकिन बुनियादी चीज़ कैम्फर है। और हर बच्चे को ज़रा सा नज़ला हो या दमा होने लगे, कुछ भी हो, नाक में रगड़ दिया, इधर उधर विक्स लगा दी, और वो हर होम्योपैथिक की दवा के असर को ख़त्म कर देती है। क्योंकि कैम्फर सबसे बड़ा एंटीडोट है, और कैम्फर इसमें एंटीडोट नहीं है होम्योपैथिक दवा की शक्ल में इतना जितना असल की शक्ल में है। इसलिए अगर वो पोटेंटाइज हो जाए तो इस तरह वो एंटीडोट नहीं करेगा, लेकिन लो पोटेंसी में एंटीडोट का काम करता है। इसलिए अगर एंटीडोट के तौर पर रखना है तो 1X 2X में रखें, या फिर असल कैम्फर तो खैर बहुत तेज चीज़ है, तो देना ही नहीं चाहिए मरीज को। और कौन से किस चीज़ के एंटीडोट्स हैं? क्यों जी? हैं? किस चीज़ का? जी सल्फर और बात है। सल्फर में एक ख़ास बात यह है कि अगर होम्योपैथिक ज़्यादा इस्तेमाल की गई हो और वो इलामतें मिलजुल गई हों, तो सल्फर देने से वो इलामतें खुलकर अपने अपने मकाम पर टिक जाती हैं और ऐसे मरीज़ की इलामतों की पहचान आसान हो जाती है। दूसरी सल्फर की खूबी यह है कि अगर एक दवा दी जाए और वो असर छोड़ दे और इंसानी जिस्म इनर्ट हो जाए, दवाओं के
मुकाबले के लिए जागे नहीं, हालांकि नॉर्मली जागना चाहिए, तो सल्फर उसमें बहुत मुफीद काम करती है। इस हद तक मुफीद है कि उसमें ये भी नहीं देखा जाता कि सल्फर जिस दवा के बाद दी जा रही है उसका बिल्कुल बरक्स तो नहीं कहीं। मसलन सिलीशिया है, सिलीशिया मैं जब इस्तेमाल कराता हूँ बच्चों को तो कई दफ़ा थोड़ी देर के बाद वो असर कमज़ोर पड़ता है। तो सल्फ़र और सिलीशिया बिल्कुल मुतज़ाद दवाएँ हैं बज़ाहिर, यानी सल्फ़र है बहुत गर्म और सिलीशिया है बहुत ठंडी, लेकिन सल्फ़र की एक खुराक बीच में दे दें तो वो दोबारा काम करना शुरू कर देती है सिलीशिया। तो ये है जो आप पे गालिबन पड़ा हुआ है कि सल्फ़र जिस्म के नम हो जाने को, बेहिस हो जाने को दुरुस्त करती है और रद्द-ए-अमल दोबारा शुरू कर देती है, और मिली जुली इलामतों की वो वाज़े करके अलग अलग करने में मददगार होती है। और कोई बड़ा एंटीडोट एफर सर, है एफर सर, किस चीज़ का? स्लेशिया मर्द साल के वो तो बीच में आती है। एंटीडोट किस चीज़ का है? एंटीडोट से मुराद है तरियाक। एक दवा का क्या तरियाक है? शहद की मक्खी के कांटे का मैंने बताया था आपको, हैं? क्या आपको अच्छा वाला बताया था और भूल गया और किसी को काट गया यहाँ कुछ, तो अब क्या क्या करें? किताब पकड़ने के लिए दौड़ेंगी, घर जाके नोट्स देखेंगी, पार्कों में जाते हैं वहाँ शहद की मक्खी काट जाती है। हो सकता है आपने छोटा सा अपना होम्योपैथी की बुकची भी उठाई हो। मैंने बताया था नेट्रम्योर और लीडम और आर्निका का कॉम्बिनेशन, या आर्सेनिक और नेट्रम्योर और लीडम का कॉम्बिनेशन, ये बिलअमूम इसके जहरीले इंसेक्ट्स के कांटे का बेहतरीन इलाज है। यहाँ तक कि सिर्फ इंसेक्ट्स ही नहीं बल्कि बिच्छू के कांटे की भी चोटी की दवा यही है। आर्निका, लीडम और नेट्रम्योर। और शहद की मक्खी के कांटे का वैसे कौन सा एंटीडोट है? वो है कार्बोलिक एसिड। एपिस का तो कार्बोलिक एसिड है, एसिड कार्ब, समझे? तो अब आपको किस किस का एंटीडोट बताऊं? असूल यही है कि जिस दवा के ऊपर आपको कुछ अबूर हासिल हो उसके किताब में देखेंगे तो आखिर पर एंटीडोट्स और मुमीद, मुआविन और मुखालिफ ये सब कुछ जिक्र होते हैं। वो उसको ख़ास तौर पर ज़हन नशीन कर लिया करें। किस चीज़ का? वैक्सीनेशन, वो ठीक है। वैक्सीनेशन जो कराते हैं ना, ख़ास तौर पर चेचक की, अब तो उड़ी गई है वो, अब तो उसकी होती नहीं। थूजा का ख़ास ताल्लुक उस वैक्सीनेशन से है, हर वैक्सीनेशन से नहीं है। चेचक के जो टीके लगाया करते थे उसके जो रद्द-ए-अमल पैदा हो जाता था उसमें थूजा कहते हैं मुफीद है। और अब तो वो चेचक दुनिया से गायब ही हो गई है। बाकी टीकों में तो मुझे पता नहीं कि फ़ायदा देती है कि नहीं। क्यों जी? अच्छा, आपने तजुर्बा किया क्या? वैक्सीनेशन का कहते हैं? नहीं, मगर मुझे तो नहीं हुआ कभी। एक दफ़ा जब हम अफ्रीका जा रहे थे तो उस वक्त इन्होंने बताया कि लाजमी है फलां फलां टीके लगवाने, तो उसमें सिवाय आर्निका के कोई चीज़ काम नहीं आई। हमारे बच्चों को, बीबी को भी लगे, मुझे भी लगे, और उन टीकों का रद्द-ए-अमल हुआ। फिर मैंने आर्निका जब ऊंची ताकत में खाई तो उससे फ़ौरन फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो इलामतें ज़ाहिर होती हैं उसमें बिल्कुल मलेरिया के आगाज़ की इलामतें होती हैं। बदन टूट रहा है और सारा जोड़ जोड़ दुखता है, तबीयत बदमज़ा, कै की तरफ माइल, तो आर्निका उसमें काम आया है। मगर आर्निका बतौर एंटीडोट के कहीं नहीं लिखा हुआ। तो बेहतर यह है कि जिस दवा से जो इलामतें ज़ाहिर हों या जिस जहर से जो इलामतें ज़ाहिर हों उनका नक्शा जहन में जमा कर वैसी दवा जिसका नक्शा आपके जहन में मौजूद रहना चाहिए, अगर याद आ जाए तो वो दें, वो एंटीडोट बनेगी। ठीक है? एंटीडोट इसी तरह इजाद हुए हैं।
जिन लोगों ने भी एंटीडोट की बात की है उन्होंने किसी मौके के ऊपर देखा कि ये इलामतें ज़ाहिर हो गई, उसकी दवाई दी। अगर पता हो कि फ़लाँ जहर से ये इलामतें ज़ाहिर हुई हैं और फिर उससे मिलता जुलता जहर जहन में आए और काम कर जाए तो इल्ला माशाअल्लाह वो हमेशा करेगा फिर। लेकिन ये मालूम होना ज़रूरी है कि फ़लाँ इलामतें फ़लाँ चीज़ से ज़ाहिर हुई थी। एक और बात, ये जो आसाब की उज़लात की कमज़ोरी है अमूमी सारे बदन में, इसमें मेरे तजुर्बे में ये बात आई है कि जो इन्फ्लुएंजिनम दवा बहुत मुफीद है। इन्फ्लुएंजिनम जहर में ये बात दाखिल है, इन्फ्लुएंजा के जहर में, कि सारे बदन की ताकत निकाल देता है, यहाँ तक कि दिल पर भी, दिल के मसल जहाँ जहाँ भी मसल्स हैं उनको कमज़ोर करता है। इसलिए इन्फ्लुएंजा के मरीज़ को अमूमन पहले ज़माने में तो डॉक्टर ख़ास तौर पर ताकीद किया करते थे कि तुम अच्छे भी हो जाओ तो आराम ज़रूर करना है, क्योंकि एकदम हरकत से सारे उज़लात पर ज़ोर पड़ता है और इसका जहर उनमें कमज़ोरी पैदा करता है। तो मैंने ये तजर्बतन बाज़ ऐसे मरीज़ों पर जिनके जिस्म में जान नहीं थी उनको इस्तेमाल करा के देखी है और अल्लाह ताला के फज़ल से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और एक मौके पर इन्फ्लुएंजा के बाद मैंने ख़ुद खा के देखी कि देखें क्या होता है, तो देखते देखते जिस्म में दोबारा जान आ गई और स्प्रिंगीनेस होती है ना जो मसल्स में, वो वापस आ जाती है। तो इन्फ्लुएंजिनम खुद इन्फ्लुएंजा के बदअसरात का एंटीडोट बन जाती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, एक किस्म का एंटीडोट है मगर खुद अपने बदअसरात का एंटीडोट भी है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, आमतौर पर इसको कहते हैं होम्योपैथी की बजाय क्या कहते हैं, आइसोपैथी, आइसोपैथी। आइसोपैथी का मतलब है जिस दवा या जहर ने कोई चीज़ पैदा की है उसी दवा या जहर की बहुत ऊंची ताकत देकर उस मरज़ का मुकाबला किया जाए, इसका नाम है एसोपैथी। अगर मरज़ जिस्म पर काबिज हो जाए तो फिर एसोपैथी काम नहीं देती इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन अगर पहले दी जाए तो वो वैक्सीनेशन का काम दे जाती है। इसलिए होम्योपैथी में जो एसोपैथी का इस्तेमाल है वो वैक्सीनेशन के तौर पर है, मरज़ के इलाज के तौर पर नहीं है। इसीलिए हम भी जब इन्फ्लुएंजा फैला हो तो इन्फ्लुएंजिनम देते हैं ताकि चंद दिन पहले वो दी जाए तो उस दौर में इन्फ्लुएंजा से या तो इंसान बीमारी नहीं होगा या होगा तो निस्बतन कम होगा। ये है अमूमी असूल। लेकिन इन्फ्लुएंजिनम के इस्तेमाल में मैंने देखा है कि बुखार इन्फ्लुएंजा के दौरान भी बहुत काम करती है और नज़ले के दौरान भी नुमाया काम करती है और उनके साथ पैदा होने वाली जो उज़लाती कमज़ोरियाँ हैं उन पर बहुत असरअंदाज होती है। बाकी इलामतों में कोई नुमाया तौर पर मुझे दिखाई नहीं दिया। मसलन खांसी में काम नहीं इतनी आएगी, उसके लिए दूसरी दवाएं हैं जो मिलती जुलती आपको पहचाननी पड़ेंगी, लेकिन जो बेजान हो जाता है मरीज़, बिस्तर पे लग जाता है, उसका बेहतरीन इलाज है। तो फिर इसके अलावा मैंने कमज़ोर ताकत वाले मरीज़ों को देकर देखी है, फ़ायदा देती है अल्लाह के फज़ल से, जिनके अंदर बुखार वगैरह कुछ भी ना हो मगर खुसूसन टांगों में या हाथों में मसल्स में कमज़ोरी हो, इंसान बेजान महसूस करे, तो ये खा के देखें, उसका फ़र्क पड़ता है। ऊंची ताकत में देते हैं या मैं तो 200 में देता हूँ, 200 से कम। नोसोड या नोजोड क्या कहते हैं इसको, नोजोड की नोसोड, नोजोड सुना है। नोजोड कहना चाहिए गालबन, लेकिन बाज़ नोसोड भी कह देते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि एस के बाद अगर वाल हरकत आए तो अमूमन से की बजाय जे आवाज़ निकलती है। आपके इल्म में है ना नोजोड? नोजोड सुना जी। हाँ, नोजोड। तो नोजोड जितने हैं वो क्या नोजोड की क्या बात की थी आपने? जी मैंने उसकी थी कि ताकत। हाँ ताकत, वही। हाँ, नोजोड जितने हैं
वो 200 ताकत से कम मैं इस्तेमाल नहीं करता, और कम में काम करते होंगे, मुझे इल्म नहीं, मगर चूंकि मेरा तजुर्बा नहीं है 200 से कम में, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन 200 के मुताबिक मुझे तजुर्बा है, और ऊपर का भी, 1000 में भी काम करता है, 10,000 में भी काम करता है। नीचे चूंकि वो दवा ऐसी है जो बीमारी के गंदे मादे से बनी होती है, इसलिए मेरी तबीयत में इनकबास था कि छोटी ताकत में दी जाए। अब सुराइनम है, वो जो जल्दी अमराज जो इंतहाई गंदी किस्म की हों, कोट टाइप की, सारा बदन के ऊपर जो गंद निकलता है, उससे दवा बनी हुई है। अब उसको लो पोटेंसी में कौन देगा? वो 200 में तो यकीनी बात हो जाती है कि नामुमकिन है कि उसका एक एटम भी उसके अंदर मौजूद रहे। कुल्लियतन वो दवा असल जहर से पाक हो चुकी होती है, और लाखों करोड़ों दफा पाक हो चुकी होती है, यानी इतना ज्यादा आगे निकल गई है। तो इसलिए मेरे जहन में यही था कि नोजोड्स को जरा ऊंची ताकत में रखा जाए तो पाक साफ दवा बने, और फायदा हमेशा हुआ है अल्लाह के फजल से। प्रिवेंटिव के तौर पर भी देखा मैंने, ये काम करती है, समझे? तो नोजोड्स को प्रिवेंटिव या प्रोफिलेक्टिक इसको कहते हैं, बीमारियों के दिफा के तौर पर, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर, बीमारी के हमले से पहले इस्तेमाल किया जाए तो नोजोड्स बहुत मुफीद होते हैं। या फिर दूसरी सूरत में बीमारी हटने के बाद उसके बद असरात में इस्तेमाल किया जाए, और उसमें भी नोजोड्स बहुत मुफीद हैं। लेकिन उस बीमारी में जिसका वो नोजोड है, वो नोजोड देना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देता, और सिवाय इसके कि किसी के तजर्बे में कोई अलग इस्तिस्नाई बात हो। मेरे तजर्बे में ये आया है कि उस वक्त वो फ़ायदा नहीं देता। लेकिन एक और इस्तिस्ना है इसमें, वो क्या है? बहुत नुमायां इस्तिस्ना है। टाइफाइड में टाइफाइडिनम और पायरोजिनम मिलाकर बहुत गैर मामूली असर दिखाने वाली दवा बन जाती है। तो जनरलाइजेशन वैसे करना ठीक नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह, इसलिए हम क्या कह देते हैं, जो आम किताबों में लिखा हुआ पाएंगे वो यही होगा कि ये एसोपैथी है, ये होम्योपैथी नहीं है, इसलिए नोजोड से उस मरज का उस वक्त इलाज करना ठीक नहीं है। मगर बाज़ जगह वो ऐसा नुमाया काम करते हैं, और ऊंची ताकत में तो ज़रूर करते हैं, छोटी ताकत में शायद ना करें। मगर एसोपैथी जब ऊंची ताकत में चली जाती है तो वो फिर सिर्फ इलामतें रह जाती है, बाकी असल गंदगी, असल जहर के साथ उसका वो जो जिस्मानी ताल्लुक है वो टूट जाता है। इसलिए काम कर सकती हैं, और बाज़ जगह करती हैं। आपको तजर्बा ही बताएगा कि कहाँ नोजोड्स दौरान मरज़ देनी चाहिए। लेकिन प्रोफिलेक्टिक में यानी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम में ज़रूर नोजोड से काम लेना चाहिए, और बीमारी ख़त्म होने के बाद जो बद असरात हैं उनमें ये ज़रूर काम करती है। ठीक है? टाइफाइड का नोजोड जो है वो बाज़ दफ़ा बाद के असरात पे बिल्कुल काम नहीं करता, इसलिए ज़रूरी है कि बीमारी के दौरान दिया जाए उसको। टाइफाइड का फालिज मेरे इल्म में नहीं आया कि कभी ठीक हुआ हो। पोलियो का हो जाता है, लेकिन टाइफाइड का नहीं होता, और मम्स का फालिज भी ठीक नहीं होता। ये जो ये क्या कहते हैं इसको, कनपेड़े, यहाँ होते कनपेड़े, मम्स। और ये ऐसे खौफनाक हैं, अगर ये इसलिए कि ये टाइफाइड असाब पर, उज़लात पर नहीं बल्कि वो नर्व्स पर बैठता है। जो जहरीला मादा नर्व्स को मार दे उसका कोई इलाज नहीं, इसलिए इलाज की कोशिश ही बेमानी है। उसके इर्द गिर्द के असरात को कम करने के लिए उसको मददगार दवाएं देना तो ठीक है, लेकिन ये ख्याल कि टाइफाइड ने अंधा कर दिया है किसी को, वो आप होम्योपैथी से ठीक कर लेंगे या टाइफाइडिनम दे के ठीक, ही गलत है। क्योंकि टाइफाइड
वो ऑप्टिक नर्व पर हमला करता है जो पीछे है, और उसको मार दे तो उसको जिंदा किया नहीं जा सकता। आजकल कोई नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं जिनसे नर्व्स के साथ उसको बाईपास करके आगे जहां हिस्सा उसका सेहतमंद है उससे मिलाने के मुतालिक अब तजर्बे हो रहे हैं। और अगर ये हो गया तो फिर बहुत से ऐसे मरीज जो बेचारे बिनाई से हाथ धो बैठे हैं उनको फ़ायदा पहुंच जाएगा। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि नोज़ोट्स को बीमारी के दौरान इस्तेमाल करना ज़रूरी है, कि बीमारी के दौरान अगर इन नोज़ोट्स को इस्तेमाल किया जाए तो उसके बद असरात फिर नहीं होते। बहुत मैंने टाइफाइड के मरीजों का इलाज किया अल्लाह के फजल के साथ। रब्वा में तो बाज़ दफ़ा वबा की सूरत में, जैसा कि पाकिस्तान में आया करता था, और अक्सर औरतें अपने बच्चे उठा के ले आती थीं टाइफाइड के, और अल्लाह के फजल से एक भी नहीं हुआ आज तक। जब जितनी देर मैंने तजुर्बा किया है कि उसको टाइफाइडिनम का नोज़ोट शुरू कर दिया जाए और उसका बुखार उतरने के बाद उसके दिमाग पर या किसी और जगह नर्व्स पर हमला हुआ हो, कोई बदअसर बाकी नहीं रहा। इसलिए मैं जोर दे रहा हूं कि नोज़ोट्स का ये इस्तेमाल भी एक नया मेरे इल्म में आया है कि अगर उनको इस्तेमाल करेंगे तो बाज़ बीमारियां जो गहरे बदअसरात छोड़ जाती हैं उनमें वो असर को कम कर देगा, यानी उसको उसकी बेखरी कर देता है, वो पैदा ही नहीं होती बीमारियां। एक और बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि टाइफाइड में तो नहीं मगर ऐसे बुखारों में जिनमें नर्व्स पर हमला नहीं होता बल्कि और किस्म के हमले हैं, वहाँ ऊंची ताकत में बाद में नोज़ोट्स काम आते हैं। इसकी एक मिसाल है चोटी की चेचक। चेचक और चेचक से मिलती जुलती बीमारियों के जो जिस्म पर गड़े पड़ जाते हैं जिल्द पर, और बाद ऐसे खौफनाक और मकरूह शक्ल के बन जाते हैं कि उससे उनको खुद भी घिन आती है, वो शीशा नहीं देख सकते बेचारे, और लोग भी शराफत और हया की वजह से नज़र नहीं फेरते, वरना नज़र वहाँ ठहरती नहीं। मैंने ऐसे से खौफनाक बिगड़े हुए चेहरे भी देखे हैं, आंखें भी अंधी हो जाती हैं। मगर आंखों के अंधापन का तो इलाज कभी नहीं मैंने देखा, क्योंकि वो आंख के खुद उसके जिस जो उसका है ना डेला, उसके अंदर कोई तब्दीलियाँ ऐसी पैदा कर देती है कि वो बिगड़ जाता है, मसख हो जाता है, और उसके बाद उसको दोबारा अपनी असल शक्ल में बहाल करना किसी दवाई के बस की बात नहीं। लेकिन चेचक के दाग पड़े हुए ऐसे गायब हो जाते हैं कि हैरान हो जाता है आदमी देखकर, और वो भी चेचक के नोज़ोट से 1,00,000 ताकत में दें, 1 महीने के वक्फे से 2 या 3 दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा देनी पड़ेगी, और उसके बाद छोड़ दें फिर उसको, और रास्ता रास्ता उसकी जिल्द हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ दिखाती है, आस्ता आस्ता वो बराबर हो जाती है। ऐसे कई मरीज़ 12 मुझे मिलते हैं अभी भी अल्लाह के फजल के साथ। उनकी पुरानी शख्सियत इसमें और आज के ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ चुका है। तो नोज़ोट्स को उनके अपने बदअसरात के लिए बहुत ऊंची ताकत में है। बीमारी ठीक होने के बाद इस्तेमाल करना एक बहुत ही कारामद चीज़ है, लेकिन ये याद रखें कि आसाब मर चुके हों तो उन पर नोज़ोट या किसी और चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता। फरमाइए। आपने बताया कि मलेरिया तो चढ़ता है सर्दी के साथ, हाँ। तो उसका पता लग जाता है, तो फिर ये टाइफाइड की पहचान क्या है? टाइफाइड है रिमिटेंट फीवर और मलेरिया है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट कहते हैं वो बुखार जो कुछ अरसे के लिए मरीज का पीछा छोड़कर कुल्लियतन अलग हो जाए और महसूस हो कि पूरी शफा हो गई है, और रिमिटेंट फीवर उसको कहते हैं जो कभी भी कुल्लियतन नहीं छोड़ता बल्कि उसका कुछ असर बाकी रह जाता है, वो डिप करता है जिस तरह उसने कमज़ोर होना है, तो जो सेहत की सतह है उससे पहले ही फिर ऊपर चढ़ जाता है, और ये होते होते यहाँ तक कि उसकी हर दफ़ा उसका डिप छोटा होने लग जाता है, और बाज़ दफ़ा फिर वो कंटिन्यूस फीवर की शक्ल में भी ज़ाहिर होने लग जाता है। यानी तब्दीली हल्की इतनी थोड़ी आती है कि आदमी पहचान नहीं सकता। ये टाइफाइड की एक इलामत है।
उसकी ख़ास अंतड़ियों की तकलीफ, उसकी रंबलिंग, यहाँ हाथ लगाएंगे तो सारे अंतड़ियों में उसकी रंबलिंग होती है। उसका चेहरा टाइफाइड का बताता है, उसका मुंह देखें, उसमें वो जगह जगह वो खून के धब्बे से पड़ने शुरू हो जाते हैं, होंठ सुकड़ जाते हैं, असहाल होते हैं, बाज़ दफ़ा बड़े सख्त किस्म के बदबूदार, और बाज़ दफ़ा वो सिर्फ कब्ज़ी है, और फिर रेविंग्स होती हैं टाइफाइड में, दिमाग पर असर हो रहा होता है। तो टाइफाइड की तो पहचान कोई मुश्किल नहीं है। टाइफाइड जब ठीक हो, और होम्योपैथिक दवाओं में मैंने देखा है कि ठीक हो तो फिर उसके छोटे छोटे धागे धागे से मुंह पे निकलाते हैं। उसको क्या कहते हैं इस्तिलाह में? टाइफाइड बुखार अगर सही तरीके पे ठीक हो तो उसके धागे धागे मुंह पे ज़रूर निकलते हैं, छोटे छोटे मोके होते हैं, बारीक बारीक उस किस्म की चीज़ें निकलती हैं, और ये इलामत है कि बुखार ठीक हो चुका है, अब अंदर उसका कोई बद असर नहीं। अगर ये ना निकले, और अक्सर जो एलोपैथिक दवा में माइसिन्स के ज़रिए टाइफाइड ठीक करते हैं उनमें ये नहीं निकलते, तो बाज़ दफ़ा 10-10 दफ़ा होता है। और ज़रूरी नहीं कि टाइफाइड के जरासीम हो तो हो, वो एक किस्म की क्या टाइफाइड की एक दायमी कैफियत बन जाती है मरीज़ की, बार बार वैसी ही इलामतें होती हैं जैसे टाइफाइड हुआ हो। उस मौके पर अगर आप टाइफाइडिनम और पायरोजिनम वाला नुस्खा देंगे तो बुखार चढ़ेगा बाकायदा, ठीक होगा, खुद ही अपना सर्कल पूरा नहीं करेगा, और आखिर पर उसके चेहरे पर वो इलामतें ज़ाहिर हो जाएंगी। क्यों जी, वक्त ख़त्म हो रहा है कि हो गया है? अच्छा जी, फिर बाकी फिर से इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।